Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. Hello everyone, so in this video I am going to start from sum number 16. For the previous video, please check the description box, the link will be there. Okay, so here in sum number 16(1), limit x tends to 3, x plus 1 minus root x plus 13 by x minus 3. Okay, so that means first here we have to rationalize this one, and as here x plus 1 minus root x plus 13, so you have to multiply the numerator and denominator both by x plus 1 plus root over x plus 13. So the upper one will be this one minus this one into this one plus this one, so it will be a square minus b square formula, and the lower one x minus 3 into x plus 1 plus root x plus 3. So here x plus 1 whole square, and if the square of this one, it will be minus x minus 13. Okay, now here you can apply the formula a plus b whole square, a square plus 2x plus 1, then minus x minus 13. So now x square, 2x minus x, it's x, and minus 13 plus 1 minus 12. Okay, so that is x square plus x minus 12 is the quadratic equation. So you can solve it by middle term factorization method, and here you will get x plus 4 into x minus 3. Then x minus 3 will be cancelled out, so it will be x plus 4 by this one. Okay, now put down the limiting value. So here 3 plus 4, as x tends to 3, so 3 plus 4, and then 3 plus 1 plus root over 3 plus 13. So 3 plus 13 means root 16. Root 16 means 4. Here 3 plus 1 4, 4 plus 3 7. So 7 by 8 is your answer. Now 16(2), limit x tends to 1, root over 3 plus x minus root 5 minus x by x square minus 1. Now same thing, you have to multiply the rationalization factor with up and down, so it will be root 3 plus x minus root 5 minus x, that means a square minus b square formula, and here x square minus 1 multiply with root 3 plus x plus root 5 minus x. So the square of this one, it will be 3 plus x, square of this one, it will be 5 plus x. As here minus, so this minus will be changed into plus. So 5 minus 5 plus 3, it's minus 2, and x plus x 2x. Okay, so here 2 will be common, so it will be 2 into x minus 1, and you know x square minus 1, that means a plus b, a minus b, that means here you can apply the formula a square minus b square. So x plus 1, x minus 1. So now x minus 1 cancel out, so 2 by this one. Now just putting the limiting value, as here x tends to 1, so here 2, and 1 plus 1, it's become 2, then 3 plus 1 4, that means root 4, 5 minus 1, it's also 4, so root 4. So value of root 4 means 2. Okay, here 2 cancel out, so this one 2 and this one also 2, so 2 plus 2, that becomes 4. Sum number 17(1), limit x tends to 2, x to the power 8 minus 256 by x minus 2. Okay, here x to the power 8 and 256 means 2 to the power 8, then x minus 2. Now as you know the formula of this one, limit x tends to a, x to the power m minus a to the power m, then x minus a, that will be m into a to the power m minus 1. Okay, now you remember that this one here a, so the constant value will be always same. Okay, as here x tends to 2, so here will be 2, here also 2. ओके अगर ये तीनों यहाँ पर सेम नहीं होगा तो ये फॉर्मूला कभी भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो ध्यान रखना, जो लिमिटिंग वैल्यू आपका दिया हुआ है उसके साथ यह जो कांस्टेंट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। सो x टेंड्स टू 2 and it will be 2 and 2. So now we can apply this formula. So it will be first m means the power of this one. So here m is 8, and then here 2 to the power 8 minus 1, as here m minus 1, so 8 minus 1 7. So 8 into 2 to the power 7, it becomes 1024. Now number 2, limit x tends to 4, x to the power 3 by 2 minus 8, x minus 4. So here x tends to 4, here also 4, but here is 8. Okay, so first you have to change this 8 in 4, and also you have to look after that one, the power will be always same. So as you know, 8 means 2 to the power 3.
okay, and 2 means 4 root or root 4 or 4 to the power half, okay, because root 4 means 4 to the power half, so you can write here 4 to the power half, that means also 2. So 4 to the power half into 3, and that becomes 4 to the power 3 by 2. That means 8 means 4 to the power 3 by 2. So instead of 8, you can write 4 to the power 3 by 2. Now comparing with this, you can easily apply this formula. As here x to the power m, a to the power m, here also x to the power 3 by 2, 4 to the power 3 by 2. That means here m equal to 3 by 2 and a equal to 4. Okay, तीनों जगह में देखिए 4 दिया हुआ है. So 3 by 2 into 4, 3 by 2 minus 1. So it will be 3 by 2 and 4 to the power half. 4 to the power half means root 4. Root 4 means 2. So 3 by 2 into 2, 2 cancel out, it becomes 3. Now sum number 18. In sum number 18 there are two problems, 1 and 2. So I suggest first solve the second problem and then you can solve the first one. Because to solve the first problem we use second one. So in the second one, limit x tends to a, x to the power m minus a to the power m, x to the power n minus a to the power n. Okay, so first here dividing both numerator and denominator by x minus a. So after dividing this one, you will get this portion. Okay, now here limit x tends to a. So limit x tends to a will be divided. So the upper one will be get a limit x tends to a and this one, and the lower one also limit x tends to a this one. So now here you can easily apply the formula and you know that formula because मैंने जो पहला वाला जो सम किया था इससे आगे वाला जो सम किया था उसमें ये formula यूज़ किया था. So that formula, and the formula is m into a to the power m minus 1. As here n instead of m, so the formula will be n into a to the power n minus 1. So it will be m by n, and then यहाँ पर देखिए दोनों में बेस सेम है. सो a लिखिए और ऊपर में m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, क्योंकि अगर कहीं भी कोई डिवाइड होता है सो लॉस ऑफ इंडिसेस के हिसाब से पावर में सब्ट्रैक्ट होता है. सो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो इट विल बी m माइनस n एंड दैट विल बी योर आंसर. ओके, सो नाउ यू हैव दिस वन इक्वल टू दिस वन. क्लियर? सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और दिस रिजल्ट in the second one, sorry that means first one. So here limit x tends to 2, x to the power 10 minus 1024 by x to the power 5 minus 32. So 1024 means 2 to the power 10 and here 32 means 2 to the power 5. Okay, so here by comparing this one, as here limit x tends to a, here limit x tends to 2, here x to the power m minus a to the power m, here x to the power 10 minus a to the power 10. That means here the value of 10 that equal to m. Now next one, x to the power 5 minus 2 to the power 5, x to the power n minus a to the power n. That means here n equal to 5. So by comparing these two equation or these two limiting function, so here you can directly write down the final value which you will get from the previous one. So here m by n, as here m means 10, n means 5, so 10 by 5. Then here 2, a, here a means 2, so write down 2, and then m minus 1, that means 10 minus 5. So it will be 2 into 2 to the power 5 and then 2 into 32, that equal to 64. ओके, इसलिए मैंने बोला था पहले सम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, फिर उसका हेल्प लेके हम सम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे. नाउ सम नंबर 19. सम नंबर 19 में भी सेम प्रॉब्लम है. सम नंबर 19 जैसे मैंने सॉल्व किया है उसको हेल्प लेके हम सम नंबर 19 2 सॉल्व करेंगे. ओके, सो यहाँ पर सम नंबर 19 1 में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स. सो लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी. मैंने 1 प्लस एक्स को t पकड़ लिया. ओके, अब जब मैंने यहाँ पर 1 प्लस एक्स को t में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब जो यहाँ पर x टेंड्स टू 0 था वो भी कन्वर्ट हो जाएगा t में. सो एज x टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर 0 बिठा दीजिए. यहाँ पर अगर 0 हो जाएगा तो 1 प्लस 0 दैट बिकम्स 1. सो t इक्वल टू 1 हो गया. इसका मतलब as x tends to 0 then t tends to 1. So now change it, limit t tends to 1. यहाँ पर हो गया t to the power n minus 1 to the power n. ओके, और नीचे x था, x का वैल्यू क्या होगा t minus 1. सो t minus 1. अब यहाँ पर देखिए फार्मूला हो गया जो पिछले वाला फार्मूला था, और फार्मूला की सबसे पहले पावर आता है, फिर 1 टू द पावर, यहाँ पर पावर से एक घट जाता है. सो इट विल बी n minus 1. अब 1 का पावर कुछ भी आ जाए, ओके,
वो हमेशा 1 ही रहता है। सो n इंटू 1 दैट मीन्स 1। इसका मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था लिमिट x टेंस टू 0 दिस 1 इक्वल टू 1। अब इसी रिजल्ट को हम नंबर 2 में यूज करेंगे। सो इन नंबर 2 लिमिट x टेंस टू 0 रूट ओवर 1 प्लस x माइनस 1 cube root 1 plus x minus 1. Okay, this is a important problem. Please observe it very carefully. So now x tends to 0 and this one. First you have to multiply with the rationalizing factor. So here root 1 plus x minus 1. So multiply with root 1 plus x plus 1 with up and down. So upper one will be in a square minus b square formula and here will be this one multiply with this one. So here the square of this one 1 plus x minus 1 1 cancel out. Okay, and there this one multiply with this one. Now you have to separate this one. Okay, so first one will be x by this one limit x tends to 0, then multiply again limit x tends to 0 1 by this one. You can easily separate this one. So now as here you know if 1 by a, sorry, suppose b by a, suppose here the fraction it's b by a. So you can write this b by a as 1 by a by b. Okay, I hope there is no problem. If the fraction is b by a, you can write this fraction in this way 1 by a plus b, क्योंकि यहाँ पर जो b है वो b फिर से ऊपर आ जाएगा और b by a में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x by दिस वन था, मान लीजिए a वाला आपका b है, a वाला आपका a है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ऊपर में 1 रखा और नीचे यहाँ पर मैंने a बाई बी कर दिया। क्लियर, फॉर्मूला से समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो था रूट ओवर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, उसको मैंने 1 प्लस एक्स होल बाई 3 कर दिया है, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1 बाई 3। सो माइनस 1। अब यहाँ पर लिमिट डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू बिठाएंगे तो 0 हो जाएगा एक्स की जगह। सो रूट 1 प्लस 0 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लिमिटिंग या फंक्शन दिया हुआ है 1 बाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 बाई एक्स। अब देखिए मैंने जो फर्स्ट प्रॉब्लम किया था, फर्स्ट प्रॉब्लम में ऐसे ही था लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस होल टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स, और इसका आंसर आया था यहाँ पर n। अब मेरे यहाँ पर क्या है, मेरे यहाँ पर x की जगह जहाँ पर n था, n की जगह यहाँ पर 1 बाई 3 दिया हुआ है। इसका मतलब इसका भी आंसर 1 बाई 3 आएगा। सो 1 बाई 1 बाई 3 और यहाँ से आ गया इंटू हाफ। समझ गए, मैंने जो 19(1) में जो प्रॉब्लम किया था उसका ही हेल्प लेके 19(2) मैंने सॉल्व कर दिया। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट विल बी नाउ 3 एंड हियर बाई 2 दैट मीन्स 3 बाई 2। सो 3 बाई 2 योर आंसर। सो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर अच्छी तरह से देखिए मैंने इसके बाद कौन सा स्टेप किया है और किसको रिप्लेस करके किसको लाया है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के लिए आपको तो मालूम ही होगा, कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ सम नंबर 20, लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n बाई x माइनस 3 दैट इक्वल टू 108। Okay, here n belongs to natural number and you have to find out the value of n here. Okay, so in the left hand side you can directly apply the formula, and the formula will be n into 3 to the power n minus 1. Here 108, the factor of 108 are 2 2 3 3 3. So 2 into 2 that means 2 square, and 3 into 3 into 3 that means 3 to the power 3. So here 2 square means 4, and instead of 3 to the power 3 you can write 3 to the power 4 minus 1. ओके, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास था n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। ओके, और यहाँ पर मुझे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर देखिए n है, यहाँ पर n माइनस 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 था इसलिए मैंने यहाँ पर 4 माइनस 1 किया, और 4 माइनस 1 से 3 भी आ जाता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब बाई कंपेयरिंग बोथ साइड n इक्वल टू 4। सम नंबर 21, इफ a1 a2 डॉट 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 an are the fixed real numbers and a function f is defined by fx equal to this one, then find
limit x tends to a fx. Okay, so here fx equal to this one, so limit x tends to a1 fx will be limit x tends to a1. अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर x दिया हुआ है, अब जब हम लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह a1 हो जाएगा. ओके, सो ईयर x माइनस a1, सो a1 माइनस a1, देन x माइनस a2, a1 माइनस a2 डॉट डॉट अप टू a1 माइनस an. अब पहला वाला जहाँ पर देखिए a1 माइनस a1 दैट इक्वल टू 0. अब कोई भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. इसका मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो दैट विल बी 0. नाउ सम नंबर 22(1). fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2 माइनस x ग्रेटर देन 1. सो डज दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट. अब लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसका एक ही फार्मूला है. क्या फार्मूला है? मैंने पहले ही बोला था, जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिटिंग वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड का लिमिटिंग वैल्यू है, दोनों आपको इक्वल होना चाहिए. ओके, जब मैंने इंट्रोडक्शन करा था लिमिट का, वहाँ पर मैंने लिखा था लेफ्ट हैंड साइड लिमिट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द राइट हैंड साइड लिमिट, देन द लिमिटिंग फंक्शन विल बी एग्जिस्ट, अदरवाइज डजेंट एग्जिस्ट. सो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर आप चेक करेंगे लिमिटिंग वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड से आता है और जो राइट हैंड साइड से, दोनों इक्वल है कि नहीं है. सो यहाँ पर देखिए x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसका मतलब जो 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट में हम चेक करेंगे. ओके, आपको ये पर क्वेश्चन देख के आपको पता करना होगा जो कौन सा पॉइंट पे यहाँ पर x अप्रोच हो रहा है. तो यहाँ पर देखिए x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसका मतलब x अप्रोचेस टू 1. सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ओके, LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx. अब देखिए 1 माइनस, इसका मतलब 1 से थोड़ा कम, 1 से कम, इसका मतलब ए वाला फंक्शन होगा. सो लिमिट x टेंस टू 1 इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसको हम h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे. सो h टेंस टू 0 देन इट विल बी 1 प्लस, जहाँ पर x था, x कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर 1 माइनस है तो 1 माइनस h हो जाएगा. अगर यहाँ पर 1 प्लस था सो 1 प्लस h हो जाएगा. क्लियर? इट्स वेरी इजी. सो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h होल स्क्वायर. Now the limiting value h tends to 0, so it will be 1 plus 1 that equal to 2. Now the right hand side limit, limit x tends to 1 plus, यहाँ पर 1 माइनस होता है, यहाँ पर 1 प्लस होता है. fx, अब 1 प्लस मीन्स 1 से ज़्यादा, दैट मीन्स ए वाला फंक्शन होगा. सो 2 माइनस एक्स. नाउ चेंज इन टू h टेंस टू 0. मैंने पहले ही बोला था अगर यहाँ पर h टेंस टू 0 होगा, सो यहाँ पर देखिए जहाँ पर x था वहाँ पर 1 प्लस h हो जाएगा. सो 2 माइनस 1 प्लस h and it will be also 1. Okay, so here limit लेफ्ट हैंड साइड का लिमिटिंग वैल्यू 2 था, राइट हैंड साइड का लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गया. इसका मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL. सो लिमिट x टेंस टू n fx डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ हियर द सेकेंड वन, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. यहाँ पर भी आपको देखना होगा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. सो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 दिया है व्हेन x ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 व्हेन x लेस देन 0. इसका मतलब 0 माइनस और 0 प्लस में आपको LHL और RHL दिखाना होगा. सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx लेस देन यहाँ पर है, सो x माइनस 1 यहाँ पर फंक्शन होगा. सो नाउ चेंज टू h टेंस टू 0, सो इट विल बी 0 माइनस h माइनस 1 एंड दैट इज माइनस 1. सेम यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पर देखिए x टेंस टू 0 है, इसका मतलब ए वाला फंक्शन होगा x प्लस 1. सो लिमिट h टेंस टू 0, अब x की जगह चेंज होकर 0 प्लस h आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा. सो इट विल बी 1. सो लेफ्ट हैंड साइड हियर वैल्यू माइनस 1, राइट हैंड साइड में 1 आ रहा है. इसका मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL. सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. हियर fx इक्वल टू x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन हाफ, 0 x इक्वल टू हाफ, x माइनस 1 हाफ लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1. लिमिट x टेंस टू हाफ fx डज नॉट एग्जिस्ट. आपको प्रूफ करना है x टेंस टू हाफ डज नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब x टेंस टू में आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपको नॉट इक्वल टू दिखाना है, क्योंकि अगर इक्वल टू नहीं होगा तब तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है. सो मैंने पहले यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड साइड में किया, लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस. ओके, अब यहाँ पर देखिए हाफ माइनस, इसका मतलब x लेस देन हाफ. तो फंक्शन क्या था यहाँ पर, x था, दैट वाई x. सो लिमिट x टेंस टू 0 हो गया.
अब x टेंस टू 0 जब होगा तो x की जगह क्या आएगा, यहाँ पर जो था हाफ माइनस h हो जाएगा. क्लियर. सो नाउ इट विल बी हाफ. नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस. अब यहाँ पर फंक्शन कौन सा आएगा, x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर हाफ प्लस है, सो यहाँ पर x माइनस 1 आ गया. सो नाउ इट विल बी लिमिट h टेंस टू 0. अब हाफ प्लस h हो जाएगा, सो हाफ प्लस h देन माइनस 1. सो इट विल बी हाफ माइनस 1 देन माइनस हाफ. अब यहाँ पर देखिए प्लस हाफ आया है, यहाँ पर माइनस हाफ. दैट मीन्स LHL नॉट इक्वल टू RHL. सो लिमिट x टेंस टू हाफ fx डज नॉट एग्जिस्ट. नेक्स्ट सम नंबर 24. Here fx equal to this one when x less than 0, 0 x equal to 0 and 2x plus 5 x greater than 0. So first evaluate limit x tends to 2 fx. So limit x tends to 2 fx, x tends to 2, that means x greater than 0. So the function will be 2x plus 5. So write down here 2x plus 5. Just putting the limiting value 2 into 2 plus 5, that equal to 9. It's very easy. Next one, limit x tends to minus 3 fx. So here x tends to minus 3, that means x less than 0. Function will be 3x minus 1. So 3 into minus 3 minus 1, that equal to minus 10. So first one, second one solved. Now the third one. Third one, does limit x tends to 0 fx exist or not? So here in third one, that means you have to check again the left hand side limit and the right hand side limit. Okay, so clear. So in the left hand side limit, limit x tends to 0 minus fx. Now again 0 minus means x less than 0. Then the function will be 3x minus 1. And then limit h tends to 0. It will be 3 into, instead of x, write down 0 minus h minus 1, and that will be minus 1. Then right hand side limit. So here limit x tends to 0 plus. Then 0 plus means x greater than 0. The function will be 2x plus 5, and then it will be 5. Okay, so that means here LHL not equal to RHL. So limit x tends to 0 fx doesn't exist. Next, sum number 25. Find k so that fx equal to this one, x less than equal to 2, x minus k, x greater than 2. And here the limit x tends to 2 fx, many exist. Okay, so that means you have to find out the value of k. And as here this limiting function many exist, that means always LHL equal to RHL होगा, क्योंकि जब तक doesn't exist नहीं होता है तब ये दोनों equal नहीं होता है. अब many exist पहले से ही बोल दिया है, इसका मतलब LHL equal to RHL होगा. सो पहले हमको क्या करना होगा, पहले हमको LHL का वैल्यू निकालना होगा, फिर RHL का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल करके वहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx. अब 2 माइनस दैट मीन्स लेस देन का, सो ये वाला फंक्शन होगा 4x माइनस 5. सो नाउ चेंज इनटू h टेंस टू 0. सो 4 इंटू 2 माइनस h माइनस 5, एंड देन द वैल्यू विल बी 3. नाउ RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस. अब ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब x माइनस k होगा. अब यहाँ पर x को चेंज करेंगे, 2 प्लस h हो जाएगा माइनस के, सो 2 माइनस के. मैंने पहले ही बोला था मेनी एग्जिस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL होगा. सो दैट मीन्स 3 इक्वल टू 2 माइनस के, and from that k equal to minus 1. Sum number 26(1). Let f be a function defined by fx equal to mod x by x, x not equal to 0, and 0 x equal to 0. Does limit x tends to 0 fx exist or not? So first you have to know what is mod x. I hope you know mod x means x if x greater than equal to 0, and minus x if x less than 0. So here पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx. अब 0 माइनस इसका मतलब 0 इक्वल टू, इसका मतलब x इक्वल टू 0 नहीं है. 0 माइनस मीन्स x लेस देन 0 भी हो सकता है. ओके, 0 माइनस लेस देन 0 हो सकता है यहाँ पर. अब लेस देन 0 का मतलब नॉट इक्वल टू 0. क्लियर. इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन होगा मॉड x बाई एक्स. सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड x बाई एक्स. अब यहाँ पर देखिए 0 माइनस है. ओके, अब 0 माइनस के लिए इसका मतलब x लेस देन 0. x लेस देन 0 के लिए यहाँ पर फंक्शन होगा माइनस x. सो माइनस x बाई एक्स. क्लियर. नाउ x कैंसिल आउट, इट विल बी माइनस 1. नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx.
अब 0 प्लस यहाँ पर भी इसका मतलब 0 नॉट इक्वल टू एक्स है, सो ये वाला फंक्शन भी अब होगा। बट यहाँ पर देखिए एक्स 0 प्लस, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, सो इट विल बी ओनली पॉजिटिव एक्स। सो यहाँ पर भी एक्स कैंसिल आउट, इट विल बी 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, right hand limit +1, that means this one not equal to this one, so the limit is does not exist. 26(2), here also limit x tends to 2 mod x minus 2 x minus 2. Okay, so you can solve this problem by the previous method, that means 26(1) में जैसे मैंने सॉल्व किया था यहाँ पर भी सेम टू सेम आपको सॉल्व करना होगा। पहले mod x minus 2 कैसे लिख लीजिए, एक वाला प्लस दूसरा वाला माइनस। फर्स्ट वन एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए होगा और सेकेंड वन एक्स लेस देन 2 के लिए होगा। अब यहाँ पर वैल्यू बिठा दीजिए, पहले वाला -1 आएगा, दूसरा वाला 1 आएगा, एकदम सेम टू सेम। सो LHL नॉट इक्वल टू RHL, दैट मीन्स लिमिट डजंट एग्जिस्ट। नाउ सम नंबर 27, इफ fx इक्वल टू mod x minus 5 देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। फर्स्ट वन, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx. Okay, so limit x tends to 5 plus, here fx is mod x minus 5, then limit h tends to 0. Now as 5 plus means 5 plus h minus 5, so it will be 5 minus 5 that equal to 0. Second one, limit x tends to 5 minus fx, so limit x tends to 5 minus mod x minus 5, as here 5 minus, so limit h tends to 0, it will be 5 minus h, then minus 5, it will be also 0. इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड, सो यहाँ पर 5 प्लस का जो वैल्यू वो भी 0 है और 5 माइनस का वैल्यू भी 0 है। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लिमिटिंग, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट दोनों का ही वैल्यू आपका 0 आ गया। इसका मतलब जो लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ पर 5 प्लस था, यहाँ पर 5 माइनस था, सो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx विल बी ऑल्सो 0, एज लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू दैट इक्वल टू 0. Now the fourth one, you have to find out the value of limit x tends to minus 5 fx. Okay, so limit x tends to minus 5 fx का वैल्यू निकालने से पहले हमको चेक करना होगा जी ये वाला जो लिमिटिंग जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। फंक्शन अगर एग्जिस्ट होगा तभी वैल्यू निकलेगा, अगर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट लेके लिमिट x tends to minus 5 minus fx. So it will be limit x tends to minus 5 minus mod x minus 5 as function. So limit h tends to 0, it will be minus 5 minus h minus 5. Then again it will be 0. Why? As you know mod of minus 5, that means 5. Next, right hand limit. Limit x tends to minus 5 plus fx. So limit x tends to minus 5 plus mod x minus 5. Limit h tends to 0, it will be minus 5 plus h minus 5. Again mod of minus 5 that equal to 5, so 5 minus 5 0. इसका मतलब दोनों का ही वैल्यू 0 आ गया। सो LHL इक्वल टू RHL, इसका मतलब जो लिमिटिंग यहाँ पर दिया हुआ था फंक्शन वो एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही अगर 0 आ गया तो दैट मीन्स दिस वन इक्वल टू 0. नाउ सम नंबर 28. This is the last sum in this video and as well as in this exercise. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel if you are a new viewer. So here in 28, let fx equal to this one, x not equal to 0 and x equal to 0. So that limit x tends to 0 fx does not exist. So यहाँ पर भी फिर से mod x का कॉन्सेप्ट आ गया। Now mod x का आपको मालूम ही होगा, पॉजिटिव x for x greater than equal to 0, नेगेटिव x लेस देन 0. सो हम पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और देन राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यहाँ पर चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ओके 0 माइनस है, इसका मतलब x लेस देन 0, सो माइनस x होगा। सो इट विल बी 2x बाई एक्स दैट इक्वल टू 2. अब नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, वहाँ पर भी 0 प्लस था, अब 0 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यहाँ पर प्लस x होगा। सो मॉड x को चेंज करके प्लस x लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स का 0 हो गया, अब 0 से कुछ भी अगर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। सो दिस वन इक्वल टू 0. सो लेफ्ट हैंड वाला 2 है, राइट हैंड वाला 0, इसका मतलब दिस वन नॉट इक्वल टू दिस वन, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट.